یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جس کا نام جہانگیر اور ملکہ کا نام نور تھا، جن کی ریاست کا نام سوناگڑھ تھا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن بے تحاشا دعائیں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سالوں کے بعد انہیں ایک پیاری سی بیٹی عطا کی، جس کا نام انہوں نے دعا رکھا۔ دعا ہی تو تھی وہ۔ میں ساتھ والے گاؤں میں موجود بابا جی کی مزار پر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں ان کے مزار پر جا کر غریبوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ ہاں کیوں نہیں، میں بھی آپ کے لیے انتظام کروا دیتا ہوں اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گا۔ وہ دونوں مزار چلے جاتے ہیں۔ مزار سے واپسی میں ملکہ کو ایک بچی کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ملکہ گھوڑے بان کو آواز لگاتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ گھوڑا روکو۔ نیچے اتر کر جب دیکھتی ہیں تو بچہ بالکل سنسان سڑک پر اکیلا بری طرح رو رہا ہوتا ہے۔ ملکہ اس بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے اور نزدیکی گاؤں میں جا کر پتہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اس بچے کے ماں باپ کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ آخر کار بادشاہ اور ملکہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو محل لے جانا چاہیے۔ اللہ نے مجھے ایک ساتھ ایک نہیں بلکہ دو بیٹیاں عطا کی ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہوگی کہ میں ایک ساتھ 2 بچوں کی پرورش کروں، اور آج سے اس کا نام شفا ہے۔ بادشاہ کو ملکہ کی بات بہت پسند آئی اور اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مجھے آپ سے ایسی ہی امید تھی۔ آج سے یہ بچی ہمارے محل میں ہماری بیٹی بن کر رہے گی۔ وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بچیاں بڑی ہو گئیں۔ شفا بہت خوبصورت تھی، گوری چٹی، نازک سے چھوٹے سے نین نقش، تاہم آنکھیں تھوڑی چھوٹی تھیں اور ناک تھوڑی موٹی۔ اس کے برعکس دعا سانولی تھی۔ ہاں، اس کے نین نقش بہت تیکھے اور پیارے تھے، بالکل ملکہ کی طرح۔ دونوں بہنوں میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہا کرتے تھے۔ شفا کو اپنے رنگ پر بڑا ناز تھا اور وہ اکثر دعا کو اس کے رنگ پر ٹوکتی رہتی تھی۔ ایک روز دعا کو اپنی دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا تھا۔ وہ ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایک پیارا سا بلیک کلر کا گاؤن نکالا اور شفا کو دکھانے لے گئی۔ شفا، دیکھو یہ ڈریس کیسی ہے، برتھ ڈے پارٹی میں جانے کے لیے مجھ پر کیسے لگے گی؟ کالے رنگ پر کالا لباس کیسا لگے گا؟ 1000 بار سمجھایا ہے تمہارا رنگ کالا ہے، مت پہنا کرو کالے کپڑے۔ تم سے تو بہتر ہوں اپنی شکل چا کر دیکھو آئینے میں، موٹی سی ناک اور بہت چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں والے۔ تمہاری شکل تو پوری ریاست میں کسی سے نہیں ملتی۔ پتہ نہیں مما بابا تمہیں کس کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لائے ہیں، چائنیز بندریاں۔ ہاں، کچرے کے ڈھیر سے تو تم آئی ہو، جب ہی تو مما بابا اتنے گورے چٹے اور تم کالی۔ میرا رنگ بالکل مما پہ گیا ہے۔ رنگ سے کیا ہوتا ہے، میری شکل بالکل مما جیسی ہے۔ ان دونوں کے لڑنے کی آوازیں کمرے سے باہر جانے لگیں۔ ملکہ ان آوازوں کو سن کر کمرے کے اندر آتی ہیں۔ تم لوگوں کی لڑنے کی آواز باہر تک آ رہی ہے۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو لیکن پتہ نہیں تم لوگوں کو عقل کبھی آئے گی؟ کب لڑنا بند کرو گی تم لوگ؟ شفا، تم میرے ساتھ آؤ، اور دعا، تم کل جانے کی تیاری کرو۔ اس وقت تو ملکہ نے معاملہ رفع دفع کروا دیا، لیکن دونوں بہنوں کے بیچ بڑی نفرت کی یہ دیوار دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ملکہ ان دونوں کی لڑائیوں سے بہت پریشان تھی، لیکن ان کے بار بار سمجھانے کے باوجود دونوں میں سے کوئی بھی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، کیونکہ دونوں ہی بہت گھمنڈی اور مغرور تھیں۔ ملکہ کے لاڈ پیار نے انہیں بہت زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ ایک روز وہ دونوں بہنیں بلند آواز میں اپنے کمرے میں لڑ رہی تھیں۔ ملکہ جب یہ آواز سن کر اندر آئیں تو ان دونوں کو بہت ڈانٹا۔ تم لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتی رہتی ہو تم لوگ؟ اس محل کو پورے ریاست میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے تم لوگوں نے۔ مما، میں نہیں بلکہ یہ چائنیز زما شفا ہے جو ہر وقت لڑتی رہتی ہے۔ کل مجھے ایک پارٹی میں جانا تھا، میں اپنا ڈریس باہر رکھ کر نہانے گئی تو اس نے کمرے میں آ کر میرا ڈریس ہی چلا دیا۔ نہیں مما، یہ کالی بندریا جھوٹ بول رہی ہے، اسے اپنی چیزوں کا خیال نہیں ہوتا۔
वो ड्रेस इसने खुद चलाई होगी और अब मेरा नाम लगा रही है। बस तुम दोनों किस कदर लड़ती हो। एक दूसरे के लिए दिल में ना ही प्यार है और ना ही इज्जत। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों इस महल का क्या हाल करोगी। मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और मैंने फैसला कर लिया है। अगर आज के बाद मैंने तुम दोनों को लड़ते हुए देखा तो मैं तुम दोनों को इस महल से बाहर निकाल दूंगी। ये कहकर मलिका वहाँ से चली जाती है। दिन यूं ही गुजर रहे होते हैं। एक रोज मलिका अपने बाग की सैर कर रही होती है। बाग का माहौल, ठंडी हवा मलिका को बहुत पुरसुकून कर रहे होते हैं। कितना सुकून है यहाँ, कितने खूबसूरत है ये पेड़। महल में इन दोनों ने लड़ लड़कर मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है। शायद मुझसे इनकी तरबियत में कोई कोताही हो गई है। पता नहीं वो कब ठीक होंगी या कभी उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होगा भी गए नहीं। मलिका इन सोचों में इतनी मगन होती हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो उस बाग से बाहर निकलती हैं और कब वो महल से बहुत दूर निकल आती हैं। वहीं से दो गुंडों का गुजर होता है। वो मलिका को पहचान लेते हैं। मौके से फायदा उठाकर वो मलिका को बेहोश करके अपने साथ अगवा करके ले जाते हैं। जल्द ही बादशाह तक ये खबर पहुंच जाती है। बादशाह अपने सिपाहियों के साथ मलिका को ढूंढने खुद जाते हैं। हम बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद भी मलिका का कुछ पता नहीं चल रहा होता। दिन गुजरते जाते हैं। पूरा 1 माह बीत चुका होता है, लेकिन मलिका का कोई पता नहीं होता। बादशाह मलिका को ढूंढने के लिए इतनी दूर निकल जाता है कि उसे महल की कोई खबर नहीं रहती। वहाँ पीछे महल में दोनों शहजादियों को खुली छूट मिल जाती है। वो दोनों अपनी मनमानियाँ करने लगती हैं। हर वक्त बेतहाशा लड़ती हैं और लड़ते लड़ते ये लड़ाई इस हद तक जा पहुँचती है कि वो अपने महल को बीच से तकसीम कर देती हैं। रियासत के लोग सब कुछ बेबसी से देख रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ करने के काबिल नहीं होते। हालात कितने बिगड़ गए हैं। कभी सोचा नहीं था कि महल का भी बंटवारा होगा। न जाने ये कैसी शहजादियाँ हैं। हाँ भाई, बादशाह के घर से तक औलाद नहीं थी। जब अल्लाह ताला ने उन्हें ये बेटियाँ दी तो उन्होंने उन्हें इतना लाड दिया कि ये बिगड़ गई। अब अल्लाह करे मलिका जल्दी से वापस आ जाए ताकि चीजें बेहतर हो सके, वरना मुझे खौफ है कि कहीं मजीद बिगाड़ पैदा ना हो जाए और कहीं इस रियासत के भी बंटवारा न कर दे ये दोनों। हाँ, दुरुस्त कहा। एक तरफ बादशाह अपनी मलिका को ढूंढने में इतना मगन हो चुका था कि उसे महल की कुछ खबर ही नहीं थी। वो कभी एक रियासत में जाता, कभी दूसरी, लेकिन मलिका का कुछ पता नहीं था। और दूसरी तरफ दोनों शहजादियों ने महल में अपनी मनमानी कर रखी थी। एक बार दुआ ने अपनी दोस्तों को महल में दावत पर बुलाया। उस रोज महल में तरह तरह के खाने बन रहे थे। शिफा ने जब ये देखा तो उसने भी अपनी दोस्तों को झट से दावत पे बुला लिया। दुआ बावर्ची को खाने के बारे में हिदायत दे रही थी। तभी शिफा अपनी दोस्तों के साथ वहाँ जाती है और कहती है, बावर्ची ये सब कुछ छोड़ो और जो मैं तुमसे कह रही हूँ वो सब बनाओ। मेरी दोस्तें ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। अरे क्यों इंतजार नहीं कर सकती? तुम्हें नजर नहीं आ रहा मेरी दोस्तें तुमसे पहले आई हुई हैं और उनकी दावत का एहतमाम पहले से हो रहा है, तो तुम अपनी दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना। तुम चुप रहो काली बंदरिया, मैंने तुमसे बात नहीं की। बावर्ची जो मैं कह रही हूँ वो करो, जल्द से जल्द ये तमाम चीजें बना लो। ये कहकर शिफा अपने दोस्तों की पसंदीदा चीजों का ऑर्डर देने लगती है। शिफा और दुआ की दोस्तें भी वहीं खड़ी ये सब कुछ देख रही होती हैं। तभी दुआ की दोस्त दुआ से कहती है, अरे दुआ, तुम्हारी तो इस महल में बिल्कुल भी नहीं चलती। देखो शिफा ने किस तरह तुम्हारी बेइज्जती कर डाली। देखो तो जरा, नौकर भी इसी का हुक्म मान रहे हैं। तुम्हारा खाना एक तरफ करके उन्होंने उसकी पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया है। मैं तो ये सोच कर यहाँ आई थी कि तुम्हारे मम्मा बाबा की गैर मौजूदगी में इस महल की तुम ही हुक्मरान हो, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि इस महल की हुक्मरानी तो शिफा के हाथ में है। दुआ को ये सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आता है।
वहाँ मौजूद शिफा और उसकी दोस्तें भी दुआ की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। इस बात से दुआ का गुस्सा मजीद बढ़ता है। वो आगे बढ़ती है और शिफा के बाल पकड़कर उसे जमीन पे गिरा देती है। देखते ही देखते दोनों बहनें शदीद बुरी तरह लड़ने लगती हैं। ये लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि दुआ अपने बाबा की तलवार निकाल लेती है। तलवार से बचने की कोशिश करते हुए शिफा पीछे भागती है तो उसके हाथ में वहाँ पड़ी हुई मशल आ जाती है। वो इस मशल को दुआ की तरफ उछाल देती है। दुआ मशल से बचने के लिए एक तरफ होती है। मशल खिड़की पर पड़े दबीज पर्दों पर जा गिरती है। देखते ही देखते आग भड़क उठती है। ताहम शहजादियाँ इस आग से बेखबर अपनी लड़ाई में मसरूफ होती हैं। दोनों शहजादियों की दोस्तों ने जब आग बढ़ती हुई देखी तो बाहर की तरफ लपकी। महल में मौजूद नौकर जाकर भी बाहर भागते हैं क्योंकि वो सब जानते थे कि शहजादियाँ कभी किसी की बात सुनती ही नहीं। दूसरी जानिब बादशाह अपनी मलिका को ढूंढते ढूंढते पूरा मुल्क छान मारता है और इस तलाश में वो एक गार के करीब जा पहुंचता है। उस गार के अंदर जाने ही लगता है कि उसे कुछ लोगों के बोलने की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी सोचा नहीं था कि हमें अमीर होने का इतना बेहतरीन मौका मिलेगा। हाँ, मालिका से हम बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। हम जितनी रकम चाहें बादशाह से मांग सकते हैं, लेकिन बादशाह से मांगने में रिस्क है। मैंने सोचा है कि हम साथ वाले मुल्क के राजा के पास जाएं और उसे बताएं कि मालिका हमारे पास है और यकीनन वो हमें एक बहुत बड़ी रकम भी देगा और हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी भी लेगा। वो बादशाह का बहुत बड़ा दुश्मन है और उसके पास इससे बेहतरीन मौका नहीं होगा बादशाह को झुकाने का या बदला लेने का। बादशाह जो गार से बाहर खड़ा ये सारी गुफ्तगू सुन रहा होता है। एक लम्हे में सारी सूरत हाल उसे समझ आ जाती है। वो अपने तमाम सिपाहियों को गार का मुहासरा करने का कहता है और अपने चंद सिपाही लेकर गार के अंदर दाखिल हो जाता है। गार के अंदर मलका एक तरफ रस्सियों से बंधी हुई होती है। वो दोनों अगवाकार बेखबरी में मारे जाते हैं। वो जब बादशाह और सिपाहियों को अपने आसपास देखते हैं तो बुरी तरह घबरा जाते हैं। ताहम कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। बादशाह का एक सिपाही आगे बढ़ता है और उन दोनों की गर्दन पर तलवार का एक ही वार करके उन दोनों को वहीं खत्म कर देता है। बादशाह मलिका की रस्सियाँ खोलता है और उसे अपने गले लगा लेता है। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया है और शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मैं जानती थी कि आखिरकार आप मुझे ढूंढ निकालेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा था और देख लीजिए अल्लाह ताला ने मेरा ये भरोसा भी कायम रखा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमें अब महल की जानिब चलना चाहिए। न जाने शहजादियों ने वहाँ पर क्या तूफान बदतमीजी मचा रखा होगा। बादशाह और मलिका सिपाहियों के साथ तेजी से महल की जानिब बढ़ते हैं। दूसरी तरफ महल में लगी आग इतनी शदीद हो चुकी होती है कि शहजादियाँ उसमें पूरी तरह गिर चुकी होती हैं। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती हैं, ताहम उनकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। सब लोग इस आग से बचने के लिए वहाँ से बहुत पहले भाग चुके होते हैं। बादशाह और मलका जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो शहजादियों को इस हालत में देखकर पागल हो जाते हैं। बादशाह सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, जल्दी से इस आग पर काबू पाओ और किसी भी तरह शहजादियों को वहाँ से बाहर निकालो। मेरी बच्चियाँ, बचाओ इन्हें। सिपाही बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाते हैं। शहजादियाँ जब इस आग से बाहर आती हैं तो उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। बादशाह और मलिका शहजादियों को जिंदा पाकर बहुत खुश होते हैं। ताहम शहजादियों को इतना होश नहीं होता कि उन्हें ये पता चले कि मलिका वापस आ चुकी हैं। मलिका महल में किए गए तमाम बंटवारे को खत्म करती हैं और महल के इंतजामात अपने हाथ में ले लेती हैं। बहुत ज्यादा इलाज और मलिका के ख्याल रखने से आहिस्ता आहिस्ता शहजादियों की तबीयत भी संभलने लगती है। ताहम मलिका शहजादियों से बात नहीं करती। जब दोनों शहजादियाँ अपने पैरों पर चलने के काबिल होती हैं, तो मलिका के पास आती हैं। हमें माफ कर दीजिए अम्मी जान, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी अम्मी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तो सोचती थी कि शायद मेरे मरने के बाद तुम सब कुछ तबाह कर दो, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी में ही सब कुछ तबाह कर दिया। कभी सोचा भी है कि अगर उस रोज वक्त पर हम दोनों नहीं आते तो तुम लोगों के साथ क्या होता?
आप ठीक कह रही हैं अम्मी जान। अगर उस रोज आप लोग ना आते तो आज हम जिंदा नहीं होते। और इसकी सबसे बड़ी वजह हम दोनों बहनों का आपस में लड़ना है। जी अम्मी, इतने दिनों मैंने भी यही सोचा और यही समझा है कि अगर आपके जाने के बाद हम दोनों बहनें मिलजुल कर रहती तो आपकी वापसी के बाद आपको इतना दुख ना उठाना पड़ता। आप तो पहले ही बहुत दुख झेल कर आई थी और यहाँ आने के बाद हमने भी आपको इतने दुख दिए। हमें माफ कर दे। बादशाह वहीं मौजूद इन तीनों की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं। मलिका, जब ये दोनों इतनी शर्मिंदा हैं, तो आपको इन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। माफ कर दे इन्हें। मलिका इन दोनों को आइंदा ना लड़ने के वादे पर माफ कर देती हैं। उस दिन के बाद से इन शहजादियों को कभी किसी ने लड़ते झगड़ते नहीं देखा।